Hello everyone, I am Master Srivastav. I am a former student of INPS classes. I secured AIR 9 in NIMSET 2021, and today I have with me Chavi Jain, one of the toppers of NIMSET 2022 toppers of INPS classes. Hello Chavi. Hi Asta. Myself Chavi Jain from Samand, Rajasthan. I secured All India rank 219 in NIMSET 2022 and I've completed my graduation from Motilal Sukaria University, Udaipur. तो अभी इस वीडियो में हम लोग छवि की पूरी प्रिपरेशन और एग्जाम के दौरान उसकी स्ट्रैटेजी, उसके फ्यूचर प्लान सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो अभी वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अभी हम लोग के पास एक कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस है जो कि यूजुअली स्टूडेंट्स पूछते हैं, तो उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उसी के बारे में जानेंगे। सो जो हम लोग का पहला क्वेश्चन है वो तो इंट्रोडक्शन है, जैसे वो तो हो गया। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो है कि निमसेट के बारे में कैसे पता चला कि निमसेट करना चाहिए, ये पाथ अच्छा रहेगा, इससे अच्छा फ्यूचर बन जाएगा, तो ये कैसे पता चला? Through Google only, because I was interested in mathematics and computer science from very starting. Like I had computer science from 11th standard, and I have graduation BSc mathematics with computer science as one of my core subjects. So I've always interested in computer science, but since due to pandemic, mathematics मैं उतना रख नहीं पाई. I was not able to keep it up to mathematics, so I chose for computer science. And yeah, and then I searched on Google about MCA, how to get enrolled in NITs and all. Then I got to know about NIMSET through Google. तो अभी जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये है कि निमसेट के बारे में पता चल गया, उसके बाद INPS क्लासेस के बारे में कैसे पता चला कि INPS क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए, क्लास अच्छी है या कुछ भी, इसके बारे में कैसे पता चला? जैसे मैंने तो गूगल किया था कि that too through Google. ओके, तो मतलब क्या रिव्यूज मिले गूगल पर या कैसे? Yeah, if you have heard of Quora. Yes, definitely. Yeah, so I got so many reviews there, and then I chose INPS classes. So many positive reviews, and I'm glad I did. ओके, सो अभी जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जैसे INPS क्लासेस का एक तो ठीक है कोरा पे मिल गया, बट जैसे पढ़ाई करी तो उस टाइम पे क्या रियलाइज हुआ कि टीचिंग पैटर्न यहाँ का कैसा है, स्टडीइंग एनवायरनमेंट कैसा है, जो गाइडेंस मिलती है टीचर्स के थ्रू वो कैसी है? So all of the teachers are very good at their respective subjects. Plus, I'm not just talking about studies. You'll get a lot of guidance plus motivation. And Nitin sir was always a call away. I've reached out to sir so many times and I always got solution. And yeah, you'll never get disappointed through what he says. I can trust me when I say that you can blindly trust Nitin sir and follows what he says, and you'll get successful. Definitely, I don't have any other second opinion in that. I totally agree. Even जब प्रिपरेशन हो भी गई है, अभी तो कॉलेज हो रहा है, फर्स्ट ईयर भी ओवर हो गया है, अभी भी सर एकदम टच में रहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो कभी भी हो कुछ भी बताना, और हमेशा पूछते भी रहते हैं कि कैसी चल रही है सब पढ़ाई। तो नितिन सर इज ऑलवेज देयर, सो दैट इज डेफिनेटली अ थिंग। ओके, फिर जो भी हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि स्टडी मटेरियल कैसे हैं INPS क्लासेस के, क्योंकि नोट्स तो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं पढ़ाई के लिए, तो वो जो मिलते हैं कोचिंग के थ्रू वो कैसे हैं, अच्छे हैं और एग्जाम में कितने हेल्पफुल है? I would say more than enough. The sheets, the material, plus you have all the video lectures for anything. If you miss in online classes, you have recorded lectures for that. Plus sheets, you have a lot of questions. Ab utna hi kar lo, that is enough, because I have not gone for any book or something. Like मैंने सुना था R.D. Sharma वगैरह, but I have not gone for that, and I am satisfied with what I got there. So study materials तो क्लियरली इनफ है। अभी जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीचर ने अच्छे से पढ़ा दिया, नोट्स अच्छे बन गए, लेकिन फिर भी एक इम्पॉर्टेंट बहुत चीज होती है, वो होती है मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट कैसे हैं INPS क्लासेस की, कितनी वैरायटी होती है, वो एग्जाम में कितने हेल्पफुल रहते हैं? मॉक टेस्ट के बारे में कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका?
हर हफ्ते हमें मॉक टेस्ट होता था एक, एंड बाय द एंड जैसे जैसे हम लोग एग्जाम के पास आने लग गए, ऑलमोस्ट वीक में 2 से 3 मॉक टेस्ट होने लग गए थे. सो आई थिंक सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज मुझे बहुत हेल्पफुल रहा. इट वर्क्स फॉर मी, क्योंकि आई ऑलवेज थॉट कि भाई मुझे नेक्स्ट टाइम हमेशा मुझे अच्छा स्कोर करना है, पहले से बेटर स्कोर करना है, और मेरा परफॉर्मेंस अच्छा जाना. मेन एग्जाम में भी वी गॉट सो मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम मॉक टेस्ट एंड शीट्स डायरेक्टली. सो एवरीथिंग गेट्स कवर्ड, मतलब हर लेवल का आपको पेपर मिल जाता है, इजी, हार्ड, मीडियम. यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर everything. Plus the interface, it's same as like the main exam. We got so used to it that it was so convenient for us, and absolutely helpful. Yes, तो जैसे कि छवि ने बताया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉक्स होते हैं, इजी, मीडियम, हार्ड, फिर फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाई जाती है, और इवन अब तो पेपर ऑनलाइन ही होता है इन सब का, तो उसके इंटरफेस से भी एकदम सिमिलर इंटरफेस रखा जाता है जो हम लोग के ऐप से मॉक टेस्ट होते हैं, ताकि एकदम यूज टू रहे वहाँ पे, ऐसा कुछ भी ना हो कि ये तो नहीं, मतलब क्योंकि ऐसा भी होता है अगर इंटरफेस यूज टू ना हो तो फिर उससे भी काफी इफेक्ट पड़ता है. तो एकदम ऐसा रहेगा जैसे ये तो मतलब मैं 10 बार दे चुकी हूँ मॉक, या इवन आई गेस अराउंड 70 to 80 मॉक्स हम लोगों ने दिए थे. तो मतलब मॉक तो इनफ होते हैं, और उससे इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जो भी स्ट्रैटेजीज बनती है फाइनल एग्जाम के लिए वो सब मॉक्स के ही थ्रू बनती हैं. तो मॉक तो काफी इंपॉर्टेंट हुआ. अभी जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि स्टडीज तो काफी ज्यादा लाइक एग्जॉस्टिंग होती हैं, तो उसके अलावा आप कैसे, पढ़ाई के अलावा कैसे टाइम मैनेज करना कि थोड़ा सा बैलेंस बना रहे, ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिंग हो जाए और फिर एक टाइम पे जाके पढ़ाई छूट ही जाए, तो ये कैसे? Uh, Hi, sorry, network problem. Yes, yes. Okay, so did you hear the question? No, I didn't. ओके, सो जो हम लोग ने क्वेश्चन अभी हम लोग का ये है कि पढ़ाई तो काफी एग्जॉस्टिंग होती है जब प्रिपरेशन में, तो उसके अलावा कैसे टाइम मैनेज करें ताकि ऐसा ना हो कि इतनी ज्यादा एग्जॉस्टिंग पढ़ाई हो चुकी है कि एक टाइम पे छूट ही जाए, तो ऐसा ना हो, तो उसके साथ कैसे उस चीज को मैनेज करें और प्रोडक्टिविटी और इंक्रीज करें. तो पढ़ाई के अलावा क्या चीजें आपने करी थी ड्यूरिंग द प्रिपरेशन? शुरू से आई वाज, मतलब आई कैन नॉट स्टडी इफ मेरा मन नहीं है. तो whenever I used to be like कि नहीं आज मुझसे नहीं हो रहा, I used to take a break, भले ही वो एक दिन का हो, but I used to take it and then re-energized myself and get through this. That's what I used to do. Plus I am a dropper. I dropped. So मैं अपने घर से कर रही थी preparation. So my family supported me whenever I used to feel down, because that phase happens. Because if you are preparing for an entrance exam, this happens. This is very common. This is a human tendency. So it happens. So my close friends and my family, they supported me. And whenever I used to feel low, they've always motivated me and they were always there, especially my parents. ओके, सो डेफिनेटली, और जैसे छवि ने कहा कि जब उसका मूड नहीं होता तो वो नहीं पढ़ाई कर पाएगी, लेकिन हाँ ये मतलब अपने माइंड पे बहुत अच्छे से कंट्रोल करना सीखना होगा कि अच्छा ठीक है आज नहीं मन कर रहा है तो आज ब्रेक ले लेते, लेकिन उस चीज को पूरा कवर भी करना पड़ेगा द रेस्ट ऑफ Plus, द I टाइम. want to add one more thing. ओके. There were points where I felt so low. So Nitin sir always motivated me. Whenever I used to call sir, he came up with the best solutions, and I was satisfied, and it worked for me. And I think it will work for everybody. ओके, सो अभी जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है कि पैंडेमिक अब तो खत्म पे है लेकिन थोड़ा थोड़ा तो अभी भी उसका इफेक्ट है, तो पैंडेमिक की वजह से पढ़ाई पे कितना इफेक्ट पड़ा, कि मतलब तो अगर पैंडेमिक ना होता तो पढ़ाई थोड़ी और अच्छी हो जाती, या पैंडेमिक की वजह से थोड़ी पढ़ाई ठीक हो गई, तो मतलब एग्जैक्टली क्या इफेक्ट पड़ा? See, if I'm talking about this year, I think इस साल pandemic का इतना कुछ वो था नहीं effect, but since I'm a dropper, so
if I'm talking about last year, तो अगर मैंने last year pandemic नहीं होता तो I would have performed well. And plus I was so late, so I didn't knew about coaching and all वगैरह. So this year I got to join. Plus I'm an online student, so pandemic doesn't really affect me, honestly speaking, because I was always at my home and online class लेना है तो उससे कोई as such कोई problem नहीं आया. अच्छी बात है, धीरे धीरे पैंडेमिक चला जाए और उससे पढ़ाई पे इफेक्ट ना ही पड़े अब स्टूडेंट्स के आने वाले, तो ये तो काफी अच्छा है। और जैसे आपने कहा कि बुक्स आपने और कोई रेफर नहीं करी थी, सिर्फ स्टडी मटेरियल, तो लेकिन ऐसा होता है कि काफी सारे स्टूडेंट्स मतलब दूसरी बुक्स रेफर कर रहे होते हैं, तो ऐसा लगता है कि कहीं मैं तो कुछ नहीं मिस कर रही हूँ या मेरी पढ़ाई तो कम नहीं रह जाएगी। उन सब चीजों से कैसे डील करना, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट काफी सारी चीजें बुक्स कंसिडर कर रहे होते हैं या और भी चीजें देख रहे होते हैं, तो उन सब चीजों को कैसे डील कराते हैं? So it happened in starting, definitely it happened. क्योंकि शीट्स ही इतना होता था, शीट्स में इतने क्वेश्चंस होते थे कि टाइम नहीं मिलता था। प्लस बाय द एंड जब आप कभी थोड़ा टाइम भी निकाल लो तो योर माइंड फील एग्जॉस्टेड, आप इतना क्वेश्चन का सॉल्व कर लो। तो शुरू में लगता था कि मतलब दूसरे स्टूडेंट्स तो कर रहे होंगे, मैं पीछे रह जाऊंगी, ये वो वगैरह। बट देन आई स्टार्टेड टेकिंग इट पॉजिटिवली कि मैं जो कर रही हूँ मैं उसको अच्छे से करूँ एंड नॉट फोकस ऑन अदर्स। आई try to cope up with it by taking myself as my competition कि मुझे grow करना है time to time. मुझे दूसरों के बारे में नहीं सोचना है. I need to improve myself because every person is different, their ability are different, so that's how I did. Yes, definitely. आप इस बात पे ध्यान रखिए कि आप ग्रो कर रहे हैं, हर मॉक में आप बेटर कर रहे हैं। रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं इस चीज से इतना इफेक्ट अपने ऊपर, ऑब्वियसली उसको एक मोटिवेशन के तरीके से ले सकते हैं कि हाँ वो अच्छा वो ग्रो कर रहे हैं तो हम भी ग्रो करें, बट उस चीज को नेगेटिवली लेने का कोई फर्क है नहीं, कुछ बस परफॉर्मेंस और गिरेगी ही, कुछ अच्छा नहीं होगा उससे। तो इस चीज को बहुत ध्यान में रखना। और जो अभी हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि कितने आवर्स डेडिकेटेड पढ़ाई करी आपने ड्यूरिंग प्रिपरेशन, कि मतलब इतने घंटे तो ऑलमोस्ट मैं पढ़ती थी यार रोज। There were no set of hours that I need to take out from my day. It was not like that. Yeah, by the end I did, but from starting I did not go for that because that is not my type. I cannot do study like that. Plus I enjoy mathematics, so I would say I gave quite hours, good amount of hours to studies because that is actually necessary. दिन भर हमारी classes होती थी, classes के बीच में भी used to do sheets and all जो हमें मिलता था homework करने के लिए, so we used to do that. And after that in the night I used to study in night only because that's what works for me. So night में 4 to 5 hours I would say. So अपार्ट फ्रॉम क्लासेस भी थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ती है, और एक बहुत चीज है कि आपके लिए क्या काम करता है वो आपको देखना पड़ेगा। आपके लिए रात में पढ़ाई सही रहती है कि दिन में पढ़े। बहुत लोग सुबह एकदम उठ के उनके लिए अच्छा रहता है, बहुत लोगों को एकदम टाइम टेबल के हिसाब से चलना रहता है, बहुत लोगों का अपने माइंड पर बहुत अच्छा कंट्रोल होता है कि आज मैं पढ़ूंगी पूरा दिन पढ़ लूंगी और अगर कल मुझे ब्रेक लेना है तो ब्रेक भी ले सकते हैं। तो क्या चीज आपके लिए काम करती है, किस चीज से आपकी सबसे अच्छी प्रोडक्टिविटी आ रही है, वो चीज रियलाइज करो। ठीक है, लोगों का अच्छा होता है लेकिन आपका अच्छा आपके हिसाब से होगा। सो अभी जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि यूजुअली तो जैसे हम लोग की पढ़ाई ऑफलाइन ही होती है, तो ऑनलाइन क्लासेस कितना मतलब डिफरेंट होती है और उस चीज का कितना इफेक्ट पड़ता है ऑनलाइन पढ़ाई का, और अगर मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन में क्या डिफरेंसेस हैं, और ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए क्या एक चीज उनको ध्यान में रखनी चाहिए, क्या आप बताना चाहेंगे उनको? सो ऑनलाइन में ऑब्वियसली आपके पास कंपटीशन नहीं होता है, वो इन्वायरमेंट नहीं होता है घर पे जो आपको कोचिंग पे मिलता है। बट देयर आर नो मतलब बहुत ज्यादा कुछ वो नहीं है डिफरेंस, बस थोड़ा कुछ फर्क आता है। बट इफ अ पर्सन इज डेडिकेटेड एंड मोटिवेटेड सो हर चीज से पॉसिबल है, वन कैन डू एनीथिंग। ऑनलाइन में बस यही इशू रहता है डेडिकेशन का थोड़ा, वो अगर आप अपने आप से ले आते हैं तो कोई भी इशू नहीं है, पढ़ाई सब सेम ही होती है। जो ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाया जाता है वही ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाया जाता है एट द सेम टाइम, तो कोई डिफरेंस आएगा नहीं। सो अभी जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है
कि ड्यूरिंग प्रिपरेशन बहुत सारे डाउन मोमेंट्स आते हैं कि ये चैप्टर नहीं समझ में आ रहा और दूसरे बच्चे अच्छा कर ले रहे हैं, या मेरे मॉक में रैंक इतनी अच्छी नहीं आ रही है, इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा। तो ऑब्वियसली पूरे एक साल की प्रिपरेशन में ऐसा तो हो नहीं सकता कि सब अच्छा अच्छा ही चले, ऑब्वियसली डाउन मोमेंट्स होते हैं। तो उनको कैसे डील किया? होता है, ऑब्वियसली होता है। जहाँ पर मॉक टेस्ट कभी अच्छा नहीं गया तो आपके अगर मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, आपने स्कोर अच्छा नहीं किया, और बहुत बार ऐसा होता है कि कांस्टेंट 2-3 मॉक्स में ऐसा हो जाता है तो आप बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड हो जाते हो। बट देन द की इज टू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड। थोड़ा पॉजिटिव आपको खुद को देना पड़ता है, प्लस टॉक टू जिससे आपको बात करके अच्छा फील होता हो, जो आपको बेटर फील करा सके, जो आपको अंडरस्टैंड करे। टॉक टू दैट पर्सन, वेदर बी इट फैमिली, फ्रेंड्स और whosoever, क्योंकि उससे आपको आपके मन की अगर चीज निकलेगी तो आपको बेटर फील होगा और आप डिस्ट्रैक्टेड फील नहीं करोगे, एंड यू विल ट्राई टू फोकस ऑन स्टडीज वापस से। सो या दैट्स व्हाट वन कैन डू। सो अभी जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे आपने बोला कि ड्रॉप किया था आपने, तो हम्म। ड्रॉपर स्टूडेंट्स के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है कि उन्होंने ड्रॉप किया, उनका एक साल जा रहा है और अब तो सिलेक्शन होना ही चाहिए। जैसे मैंने भी ड्रॉप किया था, तो अब तो सिलेक्शन जरूर होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए, वरना पूरा एक साल वेस्ट हो जाएगा। तो उस प्रेशर को कैसे डील करा कि मतलब ये जो ड्रॉप करने का प्रेशर आ रहा है उसको कैसे डील किया? आई टुक इट अदर वे अराउंड कि मतलब मेरे पास ये लास्ट चांस है। इट इज अ प्रेशर ऑब्वियसली, बट वो चीज हम ऐसे भी ले सकते हैं कि अब मैं पूरा टाइम इसी को डेडिकेट कर सकती हूँ बिकॉज आई वाज अ ड्रॉपर। तो मेरे पास और डिस्ट्रैक्शन के लिए मैं मतलब हमें सर बोलते थे कि करने वाला करने के बहाने ढूंढता है, ना करने वाला ना करने के। सो आई हैड नो डिस्ट्रैक्शंस। मेरे पास तो कोई डिस्ट्रैक्शन भी था, मुझे कोई कॉलेज नहीं जाना है, मुझे पूरा टाइम अपनी स्टडीज को दे सकती थी। तो आई चोज करने के लिए, एंड दैट्स हाउ इट वेंट। मैंने पॉजिटिवली ली उस चीज को, मैंने उसका प्रेशर नहीं लिया। बट या आई ट्राइड, एंड वीक मोमेंट्स थे, बट पॉजिटिविटी कैन सप्रेस एवरीथिंग। तो डेफिनेटली सब लोग पॉजिटिवली लेने की कोशिश करो, चाहे जो भी अगर ड्रॉप करने वाला स्टूडेंट है तो वो ये सोचे कि उसके पास पूरा टाइम इधर ही फोकस करने के लिए है, तो वो उसको पॉजिटिवली ले। अगर कोई ऐसा है जो कि कॉलेज के साथ है, तो वो ये सोच के चलने की मतलब मेरा एक साल नहीं जाएगा, तो मतलब वो एक एडवांटेज रहेगा। तो जो भी चल रहा है वो उसमें सिलेक्शन होता है, ऐसा नहीं है कि जो अपियरिंग स्टूडेंट्स है उनके सिलेक्शन नहीं होते, उनके भी होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे सिलेक्शन होते हैं। चीज़ों को बस पॉजिटिवली लो, बाकी सब सही है। और जो अभी हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जब पेपर चल रहा होता है तो उसमें क्या स्ट्रैटेजी रही, कौन सा सेक्शन पहले करना चाहिए, कौन सा सेक्शन बाद में करना चाहिए, कितना टाइम किस सेक्शन को देना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी रही एग्जैक्टली ड्यूरिंग दैट 2 आवर्स? सो मेरा शुरू से आई आई ट्राइड सो मैनी कि मैं अलग अलग तरीके से देखूं while गिविंग मॉक्स कि मेरे लिए क्या काम कर रहा है। द वन थिंग दैट ऑलवेज वर्क फॉर मी कि पहले मैथ्स करो, देन फॉर रीजनिंग, एंड देन इंग्लिश, एंड देन कंप्यूटर। क्योंकि अगर मैं मैथ्स छोड़ के कुछ और करती थी तो मुझे हमेशा ये स्ट्रेस रहता था कि अरे मेरा मेन पार्ट तो बाकी है। एंड आफ्टर मैथ्स अगर आप मैथ्स कर लेते हो उसके बाद यू विल फील लेस स्ट्रेस। तो वो मेरे लिए हमेशा काम किया। सो द फर्स्ट थिंग आई सॉल्व इज मैथमेटिक्स, देन रीजनिंग, एंड देन कंप्यूटर साइंस, एंड देन इंग्लिश। देन आई केम बैक टू मैथ्स जो भी बच गया था। सो या सो ऑब्वियसली मतलब जो भी मार्क्स के थ्रू आपकी स्ट्रैटेजी बने उसको आप फाइनल एग्जाम में भी डालिएगा। और मॉक्स इसीलिए होते हैं ताकि वो फाइनल एग्जाम की आप स्ट्रैटेजी बना सके। जो अभी हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि एक जैसे एक क्रेडिट किसको देना चाहिए अपार्ट फ्रॉम कोचिंग? ऑब्वियसली कोचिंग का काफी इफेक्ट रहा, लेकिन कोचिंग के अलावा किसको एक लास्ट क्रेडिट की जो भी सिलेक्शन के लिए, और ऑब्वियसली अपने अलावा, ठीक है मैंने बहुत मेहनत करी, उसके अलावा और किसको क्रेडिट देना चाहेंगे कि हाँ इसकी वजह से मेरा बहुत अच्छा सिलेक्शन हुआ? my family and close friends, and in my family especially my parents, my mother, and some of my close friends who were always there for me. They always motivated me. They were always there to listen to me. So yeah, definitely them, because जरूरी नहीं है कि हर टाइम आपको कोई गाइड करने वाला ही चाहिए। समटाइम्स यू नीड जो आपको सिर्फ सुन ले और आपको समझ ले। सो दे प्लेड दैट रोल फॉर मी। डेफिनेटली हम लोग को किसी ना किसी का तो सपोर्ट चाहिए ही होता है, अकेले तो सब कुछ नहीं हो सकता है। तो एंड मोस्टली फैमिली इज देयर, तो अपनी फैमिली को क्लोज रखिए, अपने क्लोज फ्रेंड से बात करिए।
और अच्छे से पढ़ाई करें। और एक जो लास्ट कोई ऐसा लास्ट मैसेज देना चाहेंगे जो भी अपने से 2023 या 2024 के एस्पिरेंट्स हैं कि ये चीज ध्यान में रखना और अच्छे से सिलेक्शन हो जाएगा, कोई एक ऐसे लास्ट मैसेज में? सो हम लोग क्या करते हैं, बहुत मैथमेटिक्स पे फोकस कर लेते हैं, एंड इंग्लिश ऐसा है जो बहुत बार छूट जाता है, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस एंड समटाइम्स रीजनिंग भी। सो उनका भी मतलब साथ साथ करना जरूरी है, क्योंकि वो भी आपका स्कोर बढ़ा ही सकते हैं। सो दैट इज वन टिप एंड नेक्स्ट इज स्टे मोटिवेटेड, डेडिकेटेड एंड गेट थ्रू दिस, एंजॉय द सब्जेक्ट। यस, डेफिनेटली ये चीज है कि मैथ काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, 600 नंबर का होता है, बट 400 नंबर भी बहुत इफेक्ट डालते हैं। तो रीजनिंग, कंप्यूटर और इंग्लिश को भी ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैथ ही मैथ करे जा रहे हैं, बाकी सब चीजें नहीं कर रहे। और ऐसा हो सकता है कि मैथ काफी टफ आ गई, मैथ नहीं हो पा रही है, और अगर बाकी सब्जेक्ट छोड़ दिए होंगे तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। सभी पे ध्यान रखना। अभी हम लोग थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में बात करते हैं छवि से, कि फ्यूचर में अभी क्या प्लान है, कहाँ कौन सा कॉलेज लेने चाह रही हैं, और एमसीए से क्या उम्मीदें हैं, क्या सोच के मतलब एडमिशन लेंगे कॉलेज में कि ये हो जाए तो अच्छा है? क्या अभी फ्यूचर से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? सो मैं एनआईटी कुरुक्षेत्र में मेरा एडमिशन ले चुकी हूँ मैं, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले। थैंक यू सो मच। सो या मुझे फर्स्ट ही राउंड में एनआईटी कुरुक्षेत्र अलॉट हो गया था, एंड आई टुक दैट चांस because I didn't wanted for go for NIT Warangal, so I chose NIT Kurukshetra, and yeah, let's see how it goes and keep looking forward to it. तो अभी फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट छवि, सब अच्छा अच्छा हो, उसको जो भी चाहिए हो सब मिल जाए, और एमसीए में भी मजे करे वो, और पढ़ाई भी करे साथ में। तो अभी हम लोग ये वीडियो भी यहीं स्टॉप करते हैं, और सभी निम से 2023 और 2024 के एस्पिरेंट्स को भी बेस्ट ऑफ लक। Yeah, all the best. ओके, बाय एवरीवन। Bye.